I forget to start the recording. Now I started the recording. Okay. Now we see, suppose we have suppose we have this data 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, and 30. This we have. And we see we have two data sets from this. One is from here, A data set we have. Another data we are taking from here to here, B data set. We find out the range of both data A and data B. So range of A 10 minus 2. So it is 10 minus 2. It is 8. And range of B Is also 8. It is also 28 minus 20, yeah, 8. So you see here the range of, if I say the range of two data set A and B is 8, can you do any sort of analysis? You could analyze it, you could go to some decision. Can't say. We could not say anything because the both range are same. They are just given us the range. We don't know where it came from. Okay. So range is what? Range is absolute measure. It is a Absolute measure. absolute measure. So we could not reach up to a decision because it is the absolute measure. And if we have a different value of range, then we could say that one is 8 and other is 18. Then we could say it is the wide and it is the narrow. Got it? At that moment we could say, but here the range is same, we could not say anything because it is the absolute measure. So we require some relative measure. So what is relative measure? All the coefficient what we use are called the relative measure, coefficients. You have heard about the coefficients in the chemistry and the physics also. And here also in the statistics, you have heard about the correlation coefficient. Correlation coefficient, Karl-Pearson correlation coefficient, Spearman's rank correlation coefficient. These are all relative measure. So we'll find out the coefficient of range. Instead of range, we will find out the coefficient of range. We see what happens now. So coefficient of range is nothing, it's very simple. Maximum minus minimum over maximum plus minimum. This is the formula for the coefficient of range. Now we find out the coefficient for both A and B. So coefficient of range of A would be, in the numerator we will get only 8, in the denominator 2 plus 10. Got it? It is 8 over 12, which is 2 by 3, which is 0.67. Got it? This is the coefficient here of range. And we see the coefficient of range for B.
Here also 8 and 20 plus 28, which is 8 over 48, which is 1 over 8, 1 over 6, or it is 0.16 something. If we calculate it, okay, so it is 0.16. So if I give you the coefficient of range of two data point, which are having the same range or maybe the different range, but if I provide you the coefficient of range, now you could conclude something out of this. If the coefficient of range is higher side, then it will belongs to low value data. The values are small, 2 to 8, low value data, 2 to 10. Thank you. So can you repeat that what you said? If we are having the high value coefficient, which is 0.67, coefficient you will get always between 0 and 1. Okay. Okay, so it is 0.67 or it is 0.16. Okay, so this coefficient is higher than this. Got it? So higher coefficient belongs to low value data always. These values are low, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 2 to 10. And the lower low value coefficient always belongs to high value data. Got it? Understand? What does that mean, sir? Like, okay. Suppose I give you one example. Yeah. You got an offer letter from two company X and company Y. And all other circumstances are same in the both companies. Okay. They just given you the coefficient of range of the salary of employees. Company X says we have the coefficient of range of our employee salary is 0.43, and company Y says our coefficient of range of employee salary is 0.32. Understand? Yeah. So which company you would prefer? 0.32. Why? Yeah. Correct? Got it? सर एक क्वेश्चन है, हाँ. पर से जो वर्ड है कोएफिशिएंट, इसका मतलब क्या होता है स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? बिकॉज हम कर तो रहे हैं ये, मगर मेरे को मीनिंग नहीं समझ आया. कोएफिशिएंट ऑफ द रेंज, वो तो, और उसका एक फॉर्मूला भी है, वो भी समझ में आ गया. मगर हम ये क्यों करते हैं? एक्चुअली रिलेटिव मेजर जो हमें चाहिए होता है दो चीज के बीच में, मतलब अपन है तो ये ए का ही कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, पर ये हमें कुछ और चीज के बारे में भी बताता है. रिलेटिवली हमें कुछ और बता रहा है जी. ओके, सो रिलेटिवली हमें ये बता रहा है कि वो कहां से ये कोएफिशिएंट किस डेटा को बिलोंग कर रहा है, किस तरह की वैल्यूज को बिलोंग कर रहा है. इज इट क्लियर? हाई वैल्यू को है या लो वैल्यू को बिलोंग कर रहा है? इज इट क्लियर? हाँ, वो तो ठीक है. सो यदि जैसे आपने कहा दो कंपनीज हैं, जब 0.32 आता है, जो बड़े वाले जो फिगर्स है, व्हाट दोस दे आर द सैलरीज और दे आर द, हाँ, सैलरीज इधर जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज स्मॉल है तो हाई सैलरी को बिलोंग करेगा. ये जितना ओरिजिन से दूर जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कम होता चला जाएगा. ओरिजिन इज 0 ऑलवेज हियर ना. सर कैसे होगा हाई वैल्यू डाटा? आप यहाँ देखेंगे, यहाँ अपना 0.16 आया, यहाँ वैल्यू देखिए 20 से लेके 28 है, यहाँ अपना 0.67 आया, तो वैल्यू क्या है? 2 से 10 है. यस सर. अरे लो वैल्यू है ना ये इसकी अपेक्षा with comparison to this. Yes sir. Got it or not? Yes sir. If you go towards right side, okay, then the coefficient range will be always less, smaller and smaller and smaller. Is it clear? So one question is there. Now, in this example, this salary example, it is better to go with the lower coefficient.
But Huh. suppose the example is something negative, like maybe incidence of cancer or something, then you have to like, how does it? Then you have to take X, or how does it work? Then it is the opposite direction. Yeah, then it should be Then 4. You will prefer 0.43, yeah. right? Okay. Yeah. So it depends on the example, which is Depends on the preferable. variable, nature of the variable. Nature of the variable. Okay. Okay. Fine. Yeah. Is it clear now? Yes. If also in because- statistics, if you get only, if I give the mean of the salary of the X company and the Y company, along with mean, there is a requirement of dispersion also. It means the standard deviation is compulsory with mean. So why is that so? Mean से भी तो हमें पता चल ही सकता है ना? हाँ, मीन से क्या होगा मैडम, एक 5 लोग हैं किसी कंपनी में, एक मैनेजर है, मैनेजर का सैलरी है 50K, ओके, फिर एक अकाउंटेंट है, उसका सैलरी है 10K, 2 सेल्स पर्सन है, उनका सैलरी है 8K ईच, कितना हुआ 16K, 16. और एक प्यून है, उसका सैलरी है 5K या 6K मान लें। यदि मैं इसका मीन निकालूंगा 50 + 10 + 16 + 6, so what mean I will get here? 50, 60, 70, 82, 82 divided by 5. 5. So what I am getting? Something. 16.45. 16.4. So this mean I am telling the mean salary of X company is suppose 16.4. So the most of the employees, the 4 employees are getting less than 16.4. It is the right representation of this data. No. Mean. No. This- It is Okay. not. So we are not considering the mean. Okay. We always consider the coefficient of range sometimes in the some scenario. Okay. We could not rely on the mean. For relying on the mean, we required some dispersion also. That dispersion may be standard deviation. I will explain you the standard deviation later on in this session. Okay. 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 So now you understand what is range and the coefficient of range. Yes, sir. Yes, तो sir. बाकी वाला क्वेश्चन अभी भी मेरे को भी क्लियर नहीं हुआ, वो कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है सर? कोफिशिएंट कोएफिशिएंट का मतलब ये है कि वो रिलेटिव मेजर को रिप्रेजेंट करता है, बस ये इट इज अ रिलेटिव मेजर, दे हैव गिवन द कोफिशिएंट नेम। तो कोएफिशिएंट सिर्फ रेंज का ही होता है सर, कि कोएफिशिएंट कैन बी ऑफ एनी अदर? एनी अदर ओके. कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन का नहीं होता है, डिस्पर्सन में होता है, अच्छा. है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ IQR, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ओके. इन सब का कोफिशिएंट्स निकालते हैं हम। सो ये सेंट्रल टेंडेंसी में किसी का भी नहीं होगा? नहीं, सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं होते कोफिशिएंट्स। सर Okay. इसका कोई सिंबल है सेपरेट? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का कोई सिंबल है? नहीं, नहीं कोई है। सिंबल नहीं इसका, Fine. नहीं। ठीक है। Now I will tell you some more thing. This is our minimum value. This is our maximum value. And this is our median, not mean, median. The 50% data is above here and the 50% below this median. And this is our third quartile. And this is our first quartile. So if you see here, this is our 50% data and this is our 50% data. Okay. Here we are getting 25% data and here we are getting 20% data. 25 ना? 25. No, Q3, Q1, sorry, it is Q1. I have written wrong. Q1 and Q3, 25%. And here we are getting
50% data between Q1 and Q3. Got it? Any doubt? No, sir. So we know that most of the population belongs to normal distribution. We take one example. In a school or in the college, in some class, if you see the generic way, less than 40 marks, there would be very few students. Understand? And more than 60 marks, there would be very few students. In the general way, I'm not talking about the very good school. It depends, it differs from school to school. Okay? But in general, if we see the population way, most of the students belongs between this. Got it? Yep. That is this part. 50%. Understand? Hypothetically, we think that the 25% would be here and the 25% would be here and the 50% would be here. So we find out sometimes we do some study, we remove, these are called the whisker. These are called the whisker. This is also a whisker. Sometimes we remove the whisker from our data. We don't involve these values below Q1 and above Q3. We take only 50% data of middle and we do the analysis on that. Okay, there are circumstances when we do it. So that is called the interquartile range. We see at that moment, that is called the interquartile range. Or it is also mentioned by IQR. Or that is equal to Q3 minus Q1. Okay. Equal to Q3 minus Q1. Yeah, Q3 is the first quartile, Q1 is the first quartile, Q3 is the third quartile. Q3 minus Q1 would be 0, na sir? No. It is the quartile. I know, but if it is a whole, from minimum to maximum is the whole, then if you are actually it should be Q1 and Q3 are both 1/3, right? Oh, sorry, 1/4, 1/4. 25%. Right, 25%. So if we remove Q1 and Q3, we are removing 20, that is 50% is removed. Then whatever is remaining is only 50%. No, I will tell you that thing. I explain you that thing. Just a moment, I'm giving some data. You see, this is our median. Got it? Right, sir? 1, 2, 3, 17, 4, 5. 21 का बीच का आएगा 11 in. So we will get the 6, 5 here and 5 here. अच्छा हाँ मैं पढ़ नहीं रही हूँ ठीक से ठीक Okay, got it. And if we see the first quartile would be what in this data?
So Q1 मुझे then nothing. is Sum of, okay. N plus 11 plus 1, 12 divided by 4 is 3. So the value of Q1 is the value of, I will tell you, just I write the right formula for that. First I write the right formula, then we see it. Okay, then you could better understand. First quartile is equal to value of n plus 1 by 4th term. Got it? This is for the first quartile. So we find out the first quartile for this. So value of 11 plus 1 by 4th term. 11 plus 1 is 12. 12 by 4 is 3. So I will just write the value of third term. Okay. So what is the value of third term? 9. 9 is the first quartile. अच्छा. Got it? Now we see the third quartile. Value of 3 into n plus 1 by 4th term. Okay. So value of it is the 12 by 4 is 3. 3 3 is a 9th term. Got it? Understand? Any doubt here? So 9 term 29. is what? The N is what here? I'm sorry. N is the total number. Because I'm in the car. Okay. Total number 11. Total number of data points. Does it make sense to you now? Yes, it does. If I find out the interquartile range, what would be? Interquartile range should be 29 minus 9, no? Yes, it is 20 now. Okay. Got it? Okay. Yeah. It means 50% data lies between 9 and 29. Okay. Middlemost 50% data. So Q3 is not exactly quarter नहीं है sir. वो मतलब कि it is not 2 plus 3 plus 9. It is actually Q3 means 9 and Q1 means 9 and Q3 means 29. 29. The value of that. Value of That that. term. Not The third term value is 9 and the ninth term value is 29. So I am taking the value of 9 term. The value of 9 term is what? 29. And value of third term is what? 9. Got it? So sorry. So Q3 will be 3 into n plus 1 by 4. Yes. And Q4 then will be 4 into n plus 1 by 4. No, Q4 is not there. Only There Q1 is no- and Q3. Oh, only Q2 is median. Okay. Q2 is median itself. Okay. So we don't measure the Q2. We measure the median. Instead of Q2, we say the median. So this is 12 into 3 by 4. 12 into 3 So by 9 means ninth term. Okay, fine. 4. Okay, ninth term. That is the value of that term we have to write. The ninth term value is 29. That would be the quartile. Okay. Is it clear? Any doubt, anyone? सर तो इस पूरे जो भी हमारा ये न्यूमेरिकल लाइन है, नंबर लाइन है, इसमें 2, 3, 12, 13, 21, 22, 32, 37 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. हाँ, 2, 3. मतलब हम except for Q1, Q2 and Q3 we are not reading any other figures. No. We are measuring the interquartile range. So what is the interquartile range? Interquartile range is 20. Means the data which are between Q3 and Q1 is the 20. 20 is the range of the spreadness is 20 here. So basically these 2 points. As you first you see the definition of spreadness here. Spreadness is overall spreadness we have seen in the range, maximum minus minimum. And the other points I have written then between 2 specific data points. So what are the specific data points here? Q1 and Q3. Got it? ठीक है सर. ये क्वार्टर नहीं है, मतलब Q को हम क्वार्टर से कंफ्यूज ना करें. No, quarter. That is the value of that particular term. Okay.
Above this, you will get the 25% data. And below Q1, you will get the 25% data. And between Q1 and Q3, you will get the 50% of your dense data. This is the dense data. तो 9 और 3 के बीच में. हाँ. Sorry, 29 and 9. हाँ, 9 और 29 के बीच में. Sorry. बीच में. 29. We will get the dense data. But अच्छा 9 और 29 के बीच में वो करना फिर रित्या. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Sir, What is? आ गया ना, उसके बीच में 5 वैल्यूज आ रही है. अगर 5 हम हाँ. वैल्यूज 11 है, अगर हम 5 वैल्यूज बीच में ही आ रही है तो 50% हो ही गया. सर, इज इट करेक्ट टू रीड इट? Correct. Yes, yes, correct. पर अगर नहीं होता then क्या नहीं होता? suppose there were not 11 those 12 values. Hmm. Suppose there were a number where you didn't get a median. I mean, and then अपने को निकालनी पड़ती तो वो करना पड़ता ना पूरा बताता हूँ. कैलकुलेशन तो लगाना पड़ता. Okay. यहाँ तो simply दिख रहा है. We have But 40. in other cases we'll have to. And we have here, I'm just telling you that thing also. Coming हाँ, to 40 that लगा point, दीजिए जैसे. है ना? तो मीडियन भी बदल जाएगा और हमारे Q1 and Q3 बदल जाएंगे. हाँ, ये 12 हो जाएगा. सर, वो नंबर अगर डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा तो ऐसा भी होता है? हाँ, वो पॉइंट में आ जाएगा ना, नो प्रॉब्लम. अच्छा, सो पॉइंट को हम वो फिर उसको वो कर लेंगे, हाँ, राउंड अप कर लेंगे. राउंड अप कर लेंगे. अच्छा. वो पॉइंट में आ जाएगा. हमेशा हमें फॉर्मूला यही रखना है. Okay, so here you will see that the 13 by 4, okay, because the 12 data points. So it is 4, 3, 4, 3, then 4 2 times, or 2 and 5 13 3.25. का जाए. 13 is the 12 data 12 point, plus 12 1. plus 1. Correct. Got it? Here also we will take the 39 3 into 3 90 आ जाएगा. 39 हो जाएगा by 4 by 4. No, 4 9s are 9s are 36 and 7s are then 20 हाँ, And 5. 0.7 नहीं, 75. for 0.7 no 0.75. 0.75 I think. Okay, so that is how we calculate this. I will tell you how we calculate this. There is a cumulative frequency we take there. We take the cumulative frequency and then we find out what would be the value there. Okay, so here's the cumulative frequency is the 9.75 will belong to this one, not this one. Yes. okay it belongs to the higher value. Higher value. Rounded up, no? Got it? Here also 3.25 not belong to this. These are the cumulative frequencies 1, 2, 3, 4 in this way. Okay, basically the serial number we could say 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3 in this way. We are getting it because 1 every number is one time, na? So we could say it is also the cumulative frequency here. So 4. it is 4. It is 12 now at this moment. 12 and 3.25. 33. So 3.25 अगर हम round off करेंगे तो we'll round it off to the third value. No, if it will go to the next. Okay, it will always, because it is I- cumulative. I will tell you one. Suppose we are taking 2, 3, 7, 11, 15. These are the x values we have, and we have some frequency also. 2 we are getting 3 times, 3 we are getting 9 times, 7 we are getting 4 times, 11 we are getting 2 times, and 15 we are getting 1 time. Got it? Is there any doubt? No. We are getting this data. If the raw FSU you will get in this way. 3, 3, 3, 3, 9 times. Then 7, 7, 4 times. Okay? Any doubt here? No, Yes. sir. No sir. So we have converted them in discrete form. Okay. Ungrouped data. This is the ungroup. So now what we do, we make a cumulative frequency. So cumulative frequency, the 3 we will write here. 3 plus 9 is 12. 12 plus 4 is
16 plus 2 is 18. 18 plus 1 is 19, which is n. Got it? Hmm. So now we have to find out the Q1. Q1 is the value of n plus 1. 19 plus 1 is 20. Divided by 4. Is it clear? Yes. Fifth term. The fifth term will belong to 12, not belong to 3. We will see in the cumulative frequency, not in here. So Does that make sense to you? fifth term will belong to 12. 12. How, sir? I It didn't is the understand. 3. And Okay. here is the 12. So Okay. 12, the value of this is 3. 3. So this is our Q1. Got it? Now we see the Q3. Sir, एक second, ये समझ नहीं आया. Yeah, even I didn't understand, sir. Can you just repeat it? This cumulative frequency is 3, then 9 plus 3, It's 12. 4 plus So 12. we have what we have got here? 5. Fifth term. So 5 will belong to 3 or belong to 12? How do we know? 12. The- We belong to 12. No, It will not belong to, because it is more than 3, so it will belong to the next term. Hmm. Okay, okay, Understand now? Hmm. okay. So the value of this It's 3. 3. It is our Q1. Hmm. If I talk about the Q3, so it would be, I think, that 15. 2, 3 is 3, 5, 15. 15 will fall between 12 and 16. It will be in 16, so value should be 7. 7. Got it? Okay, It is Q3. okay. Okay. So it always goes to the higher value. Huh? Yeah. Okay. Is it clear now? I have a doubt. Yes. मेरे को मैं कहाँ फंसी हूँ आके कि सी जो पहला वाला आपका जो एग्जांपल था उससे 1 2 3 4 5 6 7 हमने एक सीक्वेंस दिया था एंड उसमें हमने जाके वी डिसाइडेड कि जैसे 3.25 आया तो हमने 4 की वैल्यू जो 12 है वो ली है. इन तीनों ये जो सेक्शंस हैं एक्स एफ एंड सी एफ, हाउ डू आई नो कि ये जो फिफ्थ वैल्यू जो फिफ्थ वाला Q1 is 5, तो मेरे को CF में क्यों लिया है? What is CF to begin with? Cumulative frequency? हाँ, these are the cumulative frequency. तो हमने इसी के क्यों फिफ्थ वैल्यू जो Q1 is equal to 5 हमने cumulative frequency की क्यों लिए है? हमने X I will explain you that. Just a F moment. की क्यों नहीं ली? I'm just very question. मतलब Yes, शायद yes. Don't worry. मतलब Don't hesitate to यहाँ पे ask क्यों नहीं the लूँ thing. वहाँ Don't hesitate to नहीं ask. नहीं the इसीलिए thing. पूछ रही हूँ सर. I explain you that. 2 Yes, we sir. have 3 times. Can Okay. I try to explain ताकि मेरा concept clear हो जाए? हाँ प्लीज कर दे रित्या. हाँ, correct. I'll try. You tell me if I'm doing it right or not. So, Yes. Vani, in the previous example, हमारे raw data में वो number line में जितने numbers थे वही थे, है ना? मतलब सारे numbers एक बार ही आ रहे थे. There was no repetition in that. That was our raw data. So we need not actually prepare a discrete out of it. इस केस में क्या हो रहा है हमारे रॉ डेटा में दिस इज द रॉ डेटा विद सर इज राइटिंग ऑन द लेफ्ट साइड सो इट इज गॉट 3 times 2 it is got 5 times whatever 9 times 3 and 4 times 7 so on and so forth. तो इसको हम अगर ऐसे रीड करने जाएंगे तो it will be very difficult for us, so therefore we convert it into discrete data. Right. And that is why we did x and कितने so 2 कितने times repeat हो रहा है 3 times repeat हो रहा है उसके बाद 3 कितनी बार हो रहा है 9 That is your frequency. that's a frequency. Now we try I understood the frequency bit. since we Then have my question is, we did the cumulative frequency. The purpose of cumulative frequency would be to find the quarantine that whatever that quartile Quarantine नहीं quartile. quarantine कर लो. Quartile निकालने के लिए cumulative frequency की जरूरत है sir. Is that my understanding now? That is the required, because this you see the serial number. Serial number is what? It is the cumulative. 1, then 2, Correct. then 3. Is it clear? Right. The same thing is here. You are getting the 3 here, then you will add on this and you will get this 12.
अच्छा, हो गया समझ, सर समझ में आ गया ये। Again, वो so what is हाँ, happening हाँ, here? You see, it is the fifth term. Fifth term is what here? I got it now. 3. And the 15th term Only is thing is what Rita, here? you're using terminology and I'm not. Yes. And the 15th term is what here? 7. Yes. Acha, Okay. so we will see. So 3 and 7 we are getting here or not? Uh, Is it clear? Now. Yes. हाँ, हो गया. This is an easier way to compute instead of writing all the serial numbers. Easy way to represent By showing frequency. and cumulative. Yeah. Is it clear to all? Yeah. 19 plus 1 is 20, 20. So this Q1, which you have computed here, is n plus 1 into 3 by 4 for Q1. N Q1. plus 1 by 4. And yeah. Q3 is n plus 1 by 4 into 3. Into 3. Correct? Okay. Yes. Fine. What about Nupur? You understand this? Few are in silent mode, na? Nupur, Akshada, So and what's the Arunima. formula for Ah. cumulative frequency? No, it's very simple. First, you write the first one frequency, Uh-huh. then add 3 plus Oh, 9, right. 12, Add it. and then 12 plus 4, 16, 16 plus 2, 18, 18 plus 1, 19. So sir, when we have data, जैसे यहाँ पे multiple times number repeat हो रहे हैं, number of 2s, 3s, so then हम cumulative frequency निकालते हैं, उससे फिर हम quartile, interquartile निकालते हैं. हाँ, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें जरूरत पड़ता है मीडियन फैमिली के लिए. मीडियन एक फैमिली है. मीडियन फैमिली में बहुत सी चीजें आती हैं. मीडियन फैमिली में आता है आपका क्वार्टाइल्स. ओके, दोनों क्वार्टाइल्स, फर्स्ट एंड थर्ड. ओके. Yes sir. मीडियन फैमिली में आता है डेसाइल्स. मीडियन फैमिली में आता है परसेंटाइल्स. व्हाट इट? Yes sir. These are all the member of this median family. और जब भी मीडियन फैमिली की हम बात करते हैं तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कंपलसरी हो जाता है लेना. मीन के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा. मीन फैमिली में जरूरत नहीं पड़ती. Is it clear? ये सिर्फ मीडियन के लिए है. मीडियन के लिए. मीडियन में ये सब आते हैं. क्वार्टाइल्स हुआ, डेसाइल हुआ, परसेंटाइल हुआ, ऑक्टाइल हुआ, बहुत से हैं और भी. मेन यही होता है कि भाई क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल. क्वार्टाइल में हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना. 4 पार्ट्स में कैसे डेटा को डिवाइड कर रहे हैं बताता हूं मैं आपको. यू विल सी यार. जस्ट सर इस ये जो अभी यस. ओके, हाँ, cool. नहीं ठीक है. देखिएगा, ये हमारा Q2 है एक प्रकार से, जिसको मीडियन बोलते हैं. इंटरनेट गॉन. Getting it? Q2 is the median. This is the first quartile, second quartile and third quartile. तो हम second quartile ना बोल के median बोलते हैं. Understand? Yeah. So ये कितने पार्ट में डिवाइड किया? एक पार्ट ये हो गया 25%, दूसरा पार्ट ये हो गया 25%, तीसरा पार्ट ये हो गया 25%, चौथा पार्ट ये हो गया 25%. 4 पार्ट में डिवाइड हुआ ना डेटा ओवरऑल देखें तो. 1, 2, 3, 4. Yeah. Is it clear? Yes sir. इसी प्रकार जब हम डेसाइल की बात करते हैं तो डेसाइल 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है. परसेंटाइल 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है डेटा को. ओके, Got it. डज इट मेक सेंस टू यू नाउ? It's called decile, sir. DECILE. हाँ, डेसाइल. DECILE. डेसाइल. It divides the data in 10 parts. Okay, 100 parts. So, sir, जब results आते हैं ये सारे competitive exams के and they say that you lie in the 90 percentile, तो उसका मतलब ये होता है कि जो last 10th part of the total whole universe है हम उसमें lie करते हैं, right? हाँ, उसमें lie करते हैं. Got it? Percent is a different thing. Yeah. And percentile is a different thing. Percentile is based on the group, and the percent is your own. That is the individual value. The percent of the individual Correct. students' marks is a percentage.
और percentile is belongs to whole population, we could say. Okay. Sir, Yes. इसको थोड़ा नीचे करेंगे एक बार प्लीज, ये आपका जो चार्ट है, आमीन, थैंक यू। सर क्वार्टर फर्स्ट आपका 5th टर्म आ रहा था एंड थर्ड 15, तो ये 3 और 7 कैसे हुआ, ये नहीं समझ में आया 3 और 7 मतलब नहीं समझ इसमें। सर। Next, एक्स की वेरिएबल लिस्ट में so next थोड़ा example. नीचे करिए आप। और हाँ उस वो हाँ, Okay. इसमें एक्स Right. में इसमें क्या आ रहा था? फिफ्थ टर्म, ये टर्म है 1 2 3 4 सीरियल नंबर लिखा है ना मैंने, तो फिफ्थ टर्म कौन सी है? फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म। ओके ओके गॉट इट। सो द फिफ्थ टर्म का वैल्यू क्या है? ये वैल्यू तो ये है मेरे पास, x तो ये है ना मेरे, हाँ सर, so it is the 3 now. Got it? या सर गॉट इट। Any doubt now? The value of 15 term is 7. यस सर। Does that make sense to you now? समझ में आया नहीं? हाँ सर। इसके न्यूमेरिकल आपको है नहीं वैसे, मैंने देखा क्वेश्चन पेपर में, पर मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि आगे फिर समझने में आसानी होती। कोर्स में तो है, डिस्पर्सन तो है हमें, तो थ्योरी आप अच्छे से लिख सकते हो। फिर यदि आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप अपने मन से भी 2 चीजें लिख सकते हो उसमें, है ना? बिल्कुल। जो आप पढ़ोगे थ्योरी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा थ्योरी। और अब वो रटने वाला जमाना तो है नहीं अपन लोगों का कि अपन रटते बैठे हैं। एटलीस्ट विद्या को ये समझ में आ गया कि डिस्क्रीट क्या, ये क्या हो गया, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ी अभी तक, मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा मतलब। अरे क्यों नहीं, सब आ जाएगा। तो मेरे को थोड़ा वक्त तो लगता है मुझे थोड़ा, फिर भी इट डजंट, आई मीन ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो दैट्स ऑलराइट, दैट मैटर्स। सो IQR समझ में आ गया आपको, इंटरक्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1। पहले अपन Q3 का वैल्यू निकालते हैं, Q1 का वैल्यू निकालते हैं, उन दोनों के डिफरेंस को IQR बोलते हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज। इज इट क्लियर? Yes, and it is going Yes, to be 50%, right? हाँ 50%। सो नाउ वी टॉक अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ IQR, है ना? सभी के कोएफिशिएंट भी देखना है हमें। फार्मूला वही है सेम, Q1 माइनस Q3 और Q1 प्लस Q3। गॉट इट? Coefficient of IQ. ओके, वही सेम फार्मूला है जो रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए होता है, उसी तरह का। अब जो थर्ड मेजर आता है, सर इसमें Q3 minus Q1 क्यों नहीं है? सॉरी मैंने गलत लिख दिया, आपने सही बोला। वो बोला मैंने Q3 माइनस Q1 ही था, अच्छा, लिख दिया मैंने Q1 माइनस Q3, Q3 माइनस Q1 और Q1 प्लस Q3, या Q3 प्लस Q1 भी लिखो, एक ही बात है। वो नीचे प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में जरूर फर्क पड़ जाता। ओके, इज इट क्लियर नो? Yes, sir. थर्ड चीज होती है सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है, बेटा आधा कप चाय पिलाइए। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। गॉट इट? 1 divided by 2. अपना जो आया ना 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, यहां पे देखें तो अच्छा, इज इट क्लियर? इंटरक्वार्टाइल रेंज का आधा, इंटरक्वार्टाइल रेंज अपनी 4 आएगी, उसका हाफ, दैट इज द सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो हम यहां बात कर रहे हैं खाली 25% डेटा की, अब बीच के, ओनली दिस मच। Okay. सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। एक मिनट, हाँ, perfect. क्वार्टाइल डेविएशन, ये quartile deviation क्या है सर? सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज को ही क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं, विच इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द 25% डेटा। बहुत बीच का डेटा, बहुत डेंस डेटा पे हम काम करते हैं, ठीक है ना? Okay. तो ये हमें समझने के लिए यूज करते हैं। ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में आता है। जब हमारे पास कोई डेटा आता है एज ए डेटा एनालिस्ट, जब हम लोग काम करते हैं तो हमारे पास 45, 50, 120 वेरिएबल्स, 160 वेरिएबल्स होते हैं, इतने कॉलम होते हैं डेटा में।
और मिलियंस ऑफ रोज होती हैं जो रियल टाइम डेटा आता है कंपनीज का और इनका। तो हमें जैसे 165 वेरिएबल्स, हम हमारे पास 165 कॉलम्स है, तो हमें हर कॉलम को समझना पड़ेगा गहराई से। तो जनरली हम एक तो शेप देखते हैं डेटा का, दूसरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं, तीसरा मेजर ऑफ डिस्पर्सन देखते हैं। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन का भी मतलब ये नहीं है कि हम थोड़ा सरफेसली उसको देख लें खाली कि मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, हमें दूसरी चीजें को भी, यदि में बहुत डीप में बहुत प्रीशियस डेटा है तो हमें क्वार्टाइल डेविएशन तक जाना पड़ता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज भी देखेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन को भी समझेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग विद डेटा के लिए हमको, जैसे कोई एक प्रोजेक्ट हमने लिया और वो प्रोजेक्ट है किसी कंपनी के, मान लीजिए मैं जैसे कंपनी हूँ वीको लैबोरेटरी कंसल्टेंट, तो वहां का जो डेटा आता है उनका बहुत बड़ा डेटा है, तो उसको हमें हर वेरिएबल को समझना रहता है। तो हम उस अंडरस्टैंडिंग के लिए 6 महीने मांगते हैं डेटा की अंडरस्टैंडिंग के लिए। 6 months we will take only to understand the data। उसके बाद हम उस पर काम चालू करेंगे और 1 साल बाद हमें उन्हें कुछ आउटपुट देंगे, कुछ इंसाइट्स देंगे कि हाँ साहब ये ऐसा कर लो। ये डेटा सर क्या बिहेवियरल एंड एटीट्यूड्स पे आता है कि अदरवाइज आल्सो सारा, मतलब उनके सेल्स फिगर्स, मार्केट शेयर, ये सारा कुछ डेटा सब कॉम्पिटिटर्स का भी डेटा होता है उसमें। तो पहले तो हम डेटा की अंडरस्टैंडिंग के लिए ही हमें बहुत समय लगता है कि भाई इतने सारे वेरिएबल्स हैं, इतने वो हैं, डेटा में कुछ क्लीन भी करना पड़ता है डेटा को, कुछ मिसिंग भी रहता है, कुछ आउटलेयर्स भी रहते हैं, उनको भी हटाना रहता है। पूरे डेटा को समझने में 4 से 6 महीने लग जाता है। तब जाके फिर हम लोग उस पर एनालिसिस चालू करते हैं। सॉरी तो इसलिए डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स का जो डिमांड है वो उठ तो रहा है, पर मैं एक चीज देखा हूं कि जो भी पाइथन या आर लैंग्वेज सीख जाते हैं ना, 2 कोड लिखना, वो अपने आप को डेटा साइंटिस्ट लिखने लगते हैं, जबकि इसका कोर है स्टैटिस्टिक्स। तो जब तक स्टैटिस्टिक्स का डेप्थ नॉलेज नहीं होगा, डेटा साइंस से डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट बन ही नहीं सकता कोई। अभी ईटी में रिपोर्ट थी सर, उसके हिसाब से हाईएस्ट पेइंग जॉब्स आर सपोज्ड टू बी ऑफ डेटा साइंटिस्ट ओनली। हाँ, इट इज कॉल्ड द सेक्सिएस्ट जॉब ऑफ द वर्ल्ड। ये कोर्स उसके लिए चलता है कि डेटा साइंस साइंटिस्ट द सेक्सिएस्ट जॉब ऑफ द वर्ल्ड। सो उसमें यही फायदा है कि हम लोग जब मॉडल वगैरह, हमें टाइम बहुत मिलता है ना काम करने के लिए, सोचना है, थिंकिंग प्रोसेस है, एक राइटर के जैसा काम है, एनालिटिकल माइंडसेट वालों का काम है, तो सोचने को बहुत मिलता है। ऐसा नहीं कि हम 24 घंटे कोडिंग ही कर रहे हैं, हम डेटा को देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, बैठे हैं डेटा स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा बॉस भी आके पूछे क्या कर रहे हो, डेटा समझ रहे हैं क्या। दैट इज द थिंग कि भाई थिंकिंग ब्रेन प्रोसेस है एनालिसिस का पूरा। टूल तो खाली हेल्प करते हैं। इतने साल सेल्स एंड मार्केटिंग में मैंने भी निकाल दिया सर, आज तक कोई स्टैटिस्टिकल टूल यूज ही नहीं किया। तो ये कब है यूज में, तो आज तक नहीं समझ में आया। एक्चुअली क्या है रित्या जी, पहले डेटा होता नहीं था, डेटा होता था वो बहुत सेंट्रिक होता था। सेंट्रिक यानी कि जो मालिक हैं उनको थोड़ा बहुत, डेटा इतना होता भी नहीं, थोड़ा बहुत होता था, वो जो मालिक हैं, जो मैनेजमेंट जो टॉप लेवल पे हैं, उनके पास थोड़ा बहुत इंसाइट्स होते थे डेटा के, उस हिसाब से वो डिसीजन लेते थे, है ना। जब अब क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड आया, अब डेटा बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, तो अब इसके लिए हर कंपनी अब डेटा एनालिस्ट का, डेटा एनालिटिक्स का एक डिपार्टमेंट अलग से डेवलप कर रही है, एमएनसीज खास करके। अब अभी तक कंपनीज नहीं आ रही थी इसमें, पर अब उनको आना पड़ेगा क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव एज हो गया। तो बिना डेटा को समझे, यदि मुझे सेल्स की, मान लीजिए मुझे प्रेडिक्शन करना है नेक्स्ट मंथ की सेल्स की, और मेरे पास 5 साल का सेल्स का डेटा उस कंपनी का, तो मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, मुझे पूरे ट्रेंड मालूम है, हर महीने के ट्रेंड मालूम है वहां, तो मैं उससे एक मॉडल बना दूंगा, मैं अगले महीने का प्रेडिक्शन कर दूंगा कि इतनी सेल होगी। दैट इज कॉल्ड द मशीन लर्निंग, कि मैंने मशीन लर्निंग मॉडल बना दिया। मशीन लर्निंग मॉडल खाली प्रेडिक्ट करता है, रेकमेंड नहीं करता हमें कोई चीज। अब मुझे रेकमेंडेशन मॉडल बनाने के लिए अगले 2 साल चाहिए मशीन लर्निंग के बाद, तो तब वो मुझे, यदि मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मेरी जो सेल होगी 90 lakhs की सेल होगी नेक्स्ट मंथ पर्टिकुलर रीजन की, और मैनेजमेंट बोलता नहीं हमें 90 नहीं, हमें 120 lakhs की सेल चाहिए, तो फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है वहां। फिर वो सजेस्ट करता है कि आपको 120 lakhs की सेल चाहिए, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग में इतना खर्चा करना पड़ेगा, इधर इतना करना पड़ेगा, इतना वो सजेस्ट करता है, तो आपकी सेल उस लेवल पर पहुंच जाएगी। तो ये सब चीजें धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रही हैं। अभी तो एमएल आ रहा है,
AI आने में बहुत टाइम लगेगा कंपनियों में, क्योंकि ML के बाद कम से कम मिनिमम हमें 2 साल का समय लगता है AI डेवलप करने में। वो बैकवर्ड मॉडल होता है, उल्टा वर्क करता है, तो उसको 2 महीने 2 साल लग जाते हैं। वो खुद अपने आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट मॉडल होता है ना, अपने आप खुद सीखता है, तो उसको इतना समय तो चाहिए। तो अब कंपनी ये कर रही है, पहले नहीं करती थी कंपनियां इतना। पहले तो एक SWOT एनालिसिस चलता था जनरली, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। कोई भी प्रॉब्लम है उसके अल्टरनेटिव देखें, उनकी ये चारों चीजें देखी, उसमें से जो बेस्ट है वो सिलेक्ट कर लेते थे। अब वैसा नहीं होता है। तो ये समझ में आ गया क्वार्टाइल डेविएशन हम लोग कहाँ यूज करते हैं। ये जनरली बायो साइंस में यूज होता है। ओके, अब होता क्या है कि मैं आपको बताऊं, कोरोना का टेस्ट करते थे ये लोग, है ना? वो स्वैग लेते थे नाक से, वो काड़ी डाल के, और उसको कल्चर करते थे वो लोग लेबोरेटरी में। तो उस कल्चरिंग में उनको खाली क्वार्टाइल डेविएशन पे बेस्ड काम करना रहता है। 25% डेंस जो है उसके अंदर, उसी से उनको डिसीजन लेना है। इज इट क्लियर? सो वो जो भी इनकी वैल्यूज आ रही हैं, तो क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर का जो वैल्यू आ रहा है, उस हिसाब से वैसे उनको डिसाइड करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो वेरी डेंस उस पे। पर ये लोग ऐसा नहीं करते थे, इनको जल्दी रिपोर्ट देना है। क्या जल्दी रिपोर्ट देना है, तो कल्चर भी पूरा नहीं हो पाता था, और वो लोग रिपोर्ट देते थे तो मैक्सिमम रिपोर्ट, इवन आपका WHO का, जो मैं तो शुरू से ही बोल रहा था उस चीज को, कि मैं जो कोविड पे मैंने एनालिसिस किया काफी कुछ, तो मैं बोलता था 65% जो है फॉल्स पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव बोल रहे हैं वो फॉल्स है, एक्चुअली वो नेगेटिव है, वो लोग उसको पॉजिटिव बोल रहे हैं पेशेंट को। ऐसा नहीं हो सकता था कि जो पॉजिटिव थे उनको नहीं, मतलब जो नेगेटिव पॉजिटिव थे वो एक्चुअली नेगेटिव होने चाहिए थे। हाँ वही तो उनको वो फॉल्स, इसीलिए हम लोग उसको फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं, है ना? एंड व्हाट अबाउट, अच्छा फॉल्स पॉजिटिव, ठीक, फॉल्स पॉजिटिव, इसलिए वो नेगेटिव होना चाहिए थे। पर वो मैंने क्लेम किया था 65% फॉल्स पॉजिटिव है, पर WHO का क्लेम क्या आया मालूम है? 95% फॉल्स पॉजिटिव केसेस हैं, मेरे से भी ज्यादा। पहले तो मान नहीं रहे थे WHO, बाद में WHO ने माना कि नहीं, 95% फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट हो रहा है, पॉजिटिव है नहीं उसको भी पॉजिटिव बता दे रहे हैं वो लोग। सो ये एक चीज रहती है। तो जो बायो साइंस में हम लोग क्या क्वार्टाइल डेविएशन पे काम करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा आता है उसमें से 25% डेंस डेटा लेकर के हम जो भी चीज है, जो भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, जो भी हम करते हैं, उस डेंस डेटा के ऊपर काम करते हैं। Does that make sense to you? यस सर, ये वो जो अगर आप अपना ग्राफ जो मिनिमम मैक्सिमम था अगर आप ऊपर ले जाएं उसको, तो मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, कि ये क्वार्टाइल डिविएशन कहाँ पे रेस्ट करेगा? इज इट बिटवीन दैट Q2 Q3 के बीच वाला है, मतलब कि इज इट द अपर एंड ऑफ ये इन बिटवीन, इन ये मैंने, बिटवीन? हाँ ये वाला जो दिया ना 50%, 25%, This is the most central data. I mean, the मोस्ट सेंट्रल डेटा, It's most सेंट्रल dense. डेटा, मोस्ट डेंस डेटा। most dense. ओके ओके ओके, इज इट क्लियर? Yeah. मैक्सिमम लोग इसी में होंगे ना, बीच में, या देखिएगा इस ग्राफ में, हाँ, इस ग्राफ में बेटर है ना? ये 50, मतलब मैक्सिमम लोगों की फ्रीक्वेंसी तो यहीं जा रही है ना, हाईएस्ट ये फ्रीक्वेंसी है अपनी, तो वो तो इधर ही आ रही है सबसे ज्यादा लोग, तो हाइट तो इधर ही आ रही फ्रीक्वेंसी की ज्यादा, तो वो ज्यादा जो है हमें उन्हीं पे काम करना चाहिए था। इसलिए फॉल्स पॉजिटिव वाला जो कंसेप्ट आया ना, बाद में उन्होंने माना कि नहीं ऐसा है। तो ये HR डिपार्टमेंट भी इस पे काम करते हैं क्या सर? हाँ, HR में भी हम लोग बनाते हैं, 2 तरह के मॉडल बनते हैं। एक तो एट्रिशन के ऊपर बनता है कि जो एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, और एक अप्राइजल के लिए बनता है। अच्छा, तो देन दे यूज दिस ओनली? हाँ, उसमें हम लोग नहीं, उसमें हम लोग प्रेडिक्टिव मॉडल बनाते हैं मशीन लर्निंग के,
कि उससे क्या होता है कि कई कंपनियों ने चालू किया अप्राइजल के लिए कि भाई अप्राइजल ऑटोमेटिक हो जाए, नहीं तो एचआर पे ब्लेम आता है, मैनेजमेंट अरे साहब इसको ज्यादा दे दिया, हमें कम दिया है अप्राइजल। तो उसमें 2-3 तरह का डेटा होता है। एक तो एम्प्लॉय से फॉर्म भरवाया जाता है जॉब सेटिस्फेक्शन का उससे, और एक जो उनका टीएल होता है वो उसके बारे में एक फीडबैक रिपोर्ट देता है एक फॉर्म भर के, और एक इन आउट वाला जो टाइमिंग का रहता है एम्प्लॉय का, लॉग इन लॉग आउट का, वो एक होता है। और एक जो इनका टेक्निकल रिपोर्ट होता है, जैसे जिस पे वो काम कर रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट किए हैं, क्या किए क्या नहीं किए, उसका जो टेक्निकल होता है। तो ये 4-5 डेटा सेट को मिला करके अप्राइजल सेट किया जाता है। अच्छा। तो वो ऑटोमेटिक हर एम्प्लॉय का अप्राइजल वो खुद ही निकाल देता है सिस्टम, एआई मशीन लर्निंग, कि हाँ भैया इसका इतना इतना अप्राइजल होना है, इसको 13% देना है, इसको 15 देना है, इसको 20 देना है। तो फिर कोई ब्लेम नहीं कर सकता साहब, ये तो सिस्टम से हो रहा है, ये तो सिस्टम से हो रहा है, जैसा है उसमें फीड वैसा आउटपुट दे रहा है। करेक्ट। तो क्वार्टाइल डेविएशन तक समझ में आ गया? यस। अब ये जो चीजें थी 2 पॉइंट के बीच की हम बात कर रहे थे, 2 स्पेसिफिक पॉइंट के बीच में जो स्प्रेडनेस है। अब हम आते हैं स्कैटरनेस पे। दोनों ही डिस्पर्सन है। स्कैटरनेस मैंने बताया कि एक अपन एक छोटा सा डेटा बनाते हैं। तो मैं इसका डिफरेंस देखूं, 2 और 4 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 2। इसका डिफरेंस देखूं तो 1 आ रहा है, इसका डिफरेंस देखूं तो 5 आ रहा है, इनका डिफरेंस देखूं तो 2 आ रहा है, इनका डिफरेंस देखूं तो 1 आ रहा है। मैं इस डिफरेंस को ऐड ऑन कर रहा हूं। सुनो इलाइजा, ओके, किरण 3, 5, 8 और 3, 11. How many are these differences? 1, 2, 3, 4, 5. लाइट ऑन कर। Okay, so I do one thing. Hmm. 13. इवन करेंगे आप? मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, इसको 13 की +4 17 लेता हूँ। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए मैं कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। मैं 17 लेता हूँ। मैं जब 17 लूंगा तो यहाँ जो मेरे पास आएगा 17 - 12 is 5. Okay. So 2 + 1 3 + 5 8 + 2 10 + 5 15. Got it now? 15 divided by 5 is 3. Got it? तो ये स्प्रेडनेस है। यदि हम इसका एवरेज स्प्रेडनेस देख, स्कैटरनेस सॉरी, तो यदि मैं एवरेज स्कैटरनेस की बात करूं इसकी, तो वो क्या होगी? 3. एवरेज स्कैटरनेस 3 आ रहा है मेरे पास। तो यदि मैं इसके हिसाब से लिखूं 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14 + 3, 17. देखिए उतना ही डेटा पॉइंट है। Sir, I didn't understand. Why is it divided by 5? Because of the interval. हाँ, the 5 points we have, no? 5 we 5 have add on. points. 5 Okay. differences we have add on. So Okay. divided by 5. Okay. So we are getting the 3 as a interval. Okay. The average scatterness, है ना? Yes. So average scatterness, if I put here, after 2 I put 3, I will get the 5. 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14 + 3 17. I am getting the same data points. It is the average scatterness. So this is not viable in the sense of statistics. So they have thought that we should take the this is the deviation between 2 points, na? 2 is the deviation between these 2 points. Yes. 1 is the deviation between these 2 points. What it? Yes. This is the deviation between these 2 points. So it is not a good measure. So they have thought we should take the deviation from the central tendency Okay. of each data point. That would be better. Okay. From not from the consecutive points.
So what I will explain you some visualization for that. So you will see this, you will better understand this. These are the data points. Hypothetically, we are taking, these are the data points. For the better understanding, I am making this visualization for you. These are the data points, and these data points are the X1. This is the X2 second data point. This is the third data point. This is the fourth data point. This is the fifth data point. We have the N data points. So this is the Xn. Got it? Hmm. And we have somewhere mean. And we have somewhere median and somewhere mode. Got it? These are the central tendencies we have of this data. Now what I am doing, I am taking the deviation from mean of each data point. Deviation from mean Okay. of each data point. Okay. But वो mean तो नहीं था ना sir? ये mean है ना? Average. वो X bar is the mean. I know, but what we calculated was the average of the difference. I have given the definition. I will show you again. टू कंसेक्यूटिव डेटा पॉइंट्स वाला तो हमने देख लिया. दूसरा मैंने लिखा है और वन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विथ ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट्स. Actually, with each and every data. What it? No? Okay. Hmm. So you calculate the mean and then -2, -4, -5 like that. Yes, yes, in this Okay. way. Okay. So we will I am visualization I am showing you. It will you will get the better understanding through this. So I am using this one. I am changing this color. So this is the deviation from x1 minus x bar, then x2 minus x bar, then x3 minus x bar of each data point. Okay? Yeah. Of each data point. And xn minus. In this way, how many deviation I will get? सर तो n तक है. N deviation मिलेंगे मुझे, है ना? I will get the n deviation. So what I will do? I will write here. Just a moment. I will write here xi minus x bar. I is what? I is from 1 to n. Okay. It will Yes. I x1, then x2 minus x bar, x3 minus x bar. In this way, I will take. Okay. And if I deviate from the actual mean, I will get the summation 0 always. So I will convert them in positive. The deviation, I will convert all the deviation in positive. Okay. Okay. First I convert them in positive, then I get the summation. I being x, ये आपका xi है. मुझे वो तो पता हुआ, वो तो median, mode, sorry, mean है. xi minus mean. Xi that is- minus mean. I being every individual Observation. Or the data point. right, data point. Okay, observation. ठीक है. Is it clear? Okay. तो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, इसमें हम डिफरेंस क्यों निकाल रहे थे एवरेज काउंट करने के पहले? हमने मीन तो हमने निकाल लिया, तो मैं मीन से, उस मीन से डेटा एवरेजली कितना डेविएट हो रहा है मीन से. अच्छा. नहीं, मीन निकालने के लिए भी तो हमने उसको डिफरेंस निकाला ना. Deviate, हाँ. नहीं अपन ने यहाँ नहीं, वो चीज तो भूल जाइए आप. वो ये तो खत्म हो हो गया गया. कंप्लीट. इसको तो अपन को करना ही नहीं है ऑब्जर्व. अच्छा, हाँ. ये तो एक डेफिनेशन के हिसाब से ये बताया कि स्कैटरनेस, एक तो एवरेज स्कैटरनेस Between निकालते हैं, two वो अलग points. चीज है. हम्म. ओके. अब यदि आप इसका मीन निकालेंगे तो मीन तो हम इसका निकालेंगे ना, डिफरेंस का थोड़ी निकाल रहे हैं. पर देखिए ना, हमने ऊपर तो डिफरेंस का निकाला था ना सर. वो स्कैटरनेस को That's good. Scatterness का first point, दो पॉइंट है. देखिए between two consecutive data. बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डेटा पॉइंट्स. तो कंसेक्यूटिव डेटा पॉइंट कंसेक्यूटिव है ना, एक के बाद एक आने वाले डेटा पॉइंट जो होते हैं, हमने उसके बारे में बात करी पहले. 2 और 4, 2 कंसेक्यूटिव डेटा पॉइंट से इनका डेविएशन देखा, डिफरेंस 2, फिर इन दो कंसेक्यूटिव का देखा और इस डेविएशन को हमने 8 किया. ठीक है ना. 8 करने के बाद मैंने टोटल जितने भी डेविएशन आए थे उससे डिवाइड किया. 3 आए. Got it? क्या? कृतिका, Yes. कौन पूछ रहा था ये? है ना? Nritya. 3 आया ये. अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ कंसेक्यूटिव डेटा पॉइंट्स का डिफरेंस देखा था. अब मैं आपको इसी डेटा पॉइंट इसी पे बताता हूँ. देखिएगा 2, 4, 5, 10, 12, 17 में यहाँ लिख रहा हूँ. 2,
4, 5, 10, 10, 12, 17. 12, 17. गॉट इट? ये मैं लिख रहा हूं और मैं इसका समेशन कर रहा हूं, ये अपना x है, इसका समेशन कर रहा हूं। समेशन 2 प्लस कितना आ रहा है? 50. 50 आ रहा है, करेक्ट। हाउ मेनी डेटा पॉइंट्स आर हियर? 1 2 3 Six. 4 5 6, Divide. करेक्ट। 50 आ रहा है। Yeah. एक बार और चेक कर लें। 6 5 11 10 21 21 12 33 33 40 50, 50. If we find out the mean of this, so mean, how do we calculate the mean? Divided by 6. It is very simple. X bar is equal to sigma x over n. Okay, so sigma x is 50, n is 6. 8.3. Okay, we'll get the 8.3. 3. 50 by 6, it is the exact 8.3. 8.33. Okay, so it is the rational, basically we are getting sorry, irrational, rational non-terminating number we are getting, na? Yeah, 8.3333. Yes. So it will the non-terminating. So what I do some changes in this. Understand? I do some change. I make this 15. -2 कर दो ना. I make this 15. Then I will show you the thing what I want to explain. Okay. So now how much I will get? 8. I will get the 48. 8. 48, and 48 divided by 6, I will get the 8 as mean. Okay. Okay. By x bar is equal to 48 divided by 6. We have the sixth number. Right. 6 at the 48. So now I am doing the x minus x bar. Got it? I am taking the deviation from mean. I am not taking the consecutive deviation. Understand, Kartika? Now? Yes. Yes, sir. So 2 minus 8. Okay. 2 minus is- 8 or 6? Oh, 6, No. 8. Correct, sir. Sorry. Yeah. 8 is the mean. Yes. So x minus x bar, 2 is the x and 8 is the x bar. 2 minus 8 is minus 6. Then 4 minus 8 is minus 4. Got it? Yes. And 5 minus 8 is minus 3. 10 minus 8 is 2 plus 2. 12 minus 8 is 4. And 15 minus 8 is how much? 7. Got it? Yes, sir. If I get the summation of this, summation of X minus X bar. x minus x bar, what I will get, you will see. I add on the negative numbers first. So it is minus 13. This 3. And here I add on. What I will get? Minus 30 plus 13. 13. So What summation I am getting? 26, Zero. I think. 0 No. Oh, sorry. minus Acha, minus. Okay. You always get the 0. Acha, okay. standard If you deviation. get the sum of the deviation through mean, you always get that 0. Okay. So what we will do, we will get the absolute value here. What I am taking? I am taking the absolute value. Got it? So I am writing again this x xi minus x bar, the absolute value. Absolute value means minus 6 I will convert in 6. 6, yes. Minus 4 I will convert in 4, and then I will get some summation. I will get 26 at that moment. Yes. पर अगर Understand? आधा आधा करोगे तो 0 0 ही आएगा. Huh. So I am converting them in absolute value. Absolute value, what does it do? It converts the negative into positive, and the positive will remain the positive. और ये करना पड़ता है काफी बार. अब जल्दी हाँ. करना ही होता है. करना ही होता है. Is it clear? Sir, तो अब यहां क्या हुआ कि मैंने ये सब डेविएशन का सम कर लिया. सम करने के बाद मैंने इसको टोटल डेविएशन नंबर से डिवाइड कर दिया. मेरे पास n डेविएशन है, n से डिवाइड कर दूंगा. ये कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन डेल्टा x बार. ये कहलाएगा मेरा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, MAD. कल लिखा था, कल किसी ने पूछा भी था मुझसे. हाँ, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन. ओके, MAD. deviation. तो ये अभी तो अपन ने मीन से लिया है.
यही चीज मैं मीडियन से भी तो डेविएशन देख सकता था हर पॉइंट का। हम्म, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एम ई, यदि मैं मीडियन से देख रहा हूं तो एक्स आई माइनस एम ई divided by n. This is also the deviation, mean of the deviation per through median. Deviation taken through median, and we have got the mean of that deviation. Got it? भाई अपन ने डेविएशन तो मीडियन से लिया, पर उस जो हमने डेविएशन का क्या किया है, एन से डिवाइड करके मीन निकाला है। ये भी तो मीन ही हुआ ना, एन से डिवाइड कर रहे हैं तो। ठीक है, मीन से करना है कि मीडियन से करना है? मैं तो अब यही मेरा क्वेश्चन है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मीन से करना है कि मीडियन से करना है? वहीं आएंगे, अभी अपन उसी पॉइंट पे आएंगे। अच्छा, वही तो चीज है कि यहाँ यही तो स्टैटिस्टिक तभी तो बनता है। यही तो कंट्राडिक्शन हुआ था, तब तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जन्म हुआ। अच्छा, हाँ, मोड से भी ले सकते हैं। ओ सर ये क्या सिंबल है सर, ये सिखा दीजिए। ये डेल्टा डेल्टा डेल्टा, डेल्टा, बस ऐसा अपन को करना है और ये डेल्टा हो गया। ये किस चीज के लिए होता है? स्टैंडर्ड ये मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के लिए ये सिंबल है। अच्छा, वो मैड के लिए। ओके, मैट के लिए डेल्टा के पहले क्या लिखा है आपने? ये नहीं, ये डेल्टा है। फिर एमई फॉर थ्रू मीडियन, थ्रू मीन, थ्रू मोड, जेड फॉर मोड। वो तो ठीक है, पर उसके पहले जो अच्छा व्हाटएवर दैट डेल्टा है। डेल्टा है, राइट? हाँ, डेल्टा है, डेल्टा है। सर मीडियन वाला फॉर्मूला बता दीजिए क्या लिखा है। मीडियन का यस सर। एक्स आई माइनस एम ई ओवर एन, ओके ओके। और यहाँ एक्स आई माइनस जेड ओवर एन। ओके, कैपिटल एन लिख दे, स्मॉल एन लिख दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्फ्लुएंशियल में जरूर उसका डिफरेंस होता है, कैपिटल एन का मीनिंग अलग हो जाता है और स्मॉल एन का अलग हो जाता है। वो मैं वहां बताऊंगा इन्फ्लुएंशियल में आपको। यहाँ तो आप कैपिटल भी लिख दो, स्मॉल भी लिख दो, चलेगा। सर तो अगर हम मीडियन से निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा जो हमने लिया है, सिंस इवन नंबर है तो हम 5 प्लस 10 करेंगे डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी द मीडियन, एंड देन उसको हम xi माइनस 7.5 डिवाइडेड बाय n करेंगे, राइट? हाँ, उस प्रकार से। तो ये अपने तीनों से ले सकते हैं, है ना। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन हमारे पास 3 होता है। यदि मैं कहीं पे मेड लिख दूं, मैं लिख दूं कि मेड 2.5 है, तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होगा कि भैया ये मीन से लिया था, मीडियन से लिया था, मोड से लिया था। ये आपके दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? यस, है ना। आएगा। तो पहली चीज ये। अब इसमें क्या हुआ कि 3 बातों पे लोगों के ऑब्जेक्शन थे, स्टैटिस्टिशियंस के और मैथमेटिशियन के। पहला जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि वन स्पेसिफिक सेंट्रल टेंडेंसी होना चाहिए मेजर करने के लिए, है ना। स्पेसिफिक सेंट्रल टेंडेंसी, 3 नहीं, अपन 3 ले रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ बनाओ, कुछ स्टैंडर्ड बनाओ कि जिसमें एक स्पेसिफिक सेंट्रल टेंडेंसी यूज होती हो। और ये जो हम नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहे हैं, ये अर्थमेटिकली तो करेक्ट है, पर एल्जेब्रा के हिसाब से ये हम लोग सही नहीं मानते मैथमेटिक्स। तो एल्जेब्रिकली दिस इज रॉन्ग, वी आर कन्वर्टिंग नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। सो एक तो ये चीज आप इसको ठीक करो कि एल्जेब्रिकली इट इज नॉट ओके, है ना, कन्वर्ट नेगेटिव इनटू पॉजिटिव थ्रू द एब्सोल्यूट वैल्यू। To convert negative into positive with absolute value, with modulus या absolute value, we could write that. Okay, दूसरा ये था। तीसरा ये था कि जो डेविएशन आ रहा है हमारे पास, ये वन डायरेक्शनल है, इट इज द यूनिडायरेक्शनल। ये 3 ऑब्जेक्शन थे। यूनिडायरेक्शनल का मतलब मैं आपको बताता हूं। यदि मान लो मेरे पास ये मीन मार्क्स है बच्चों के ए सेक्शन के, ऐसे ही मेरे पास बी सेक्शन के बच्चों के भी मीन मार्क्स हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। ये मान लो 45 है, और मैंने इससे जो भी डेविएशन निकाला, चाहे मीन से निकाला हो, ये मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, और वो वैल्यू मेरे को पॉजिटिव ही मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी क्या कभी? I will always get the positive value. मीन से कि मीडियन से? किसी से भी अपन लेंगे, क्योंकि ये तो हमें पॉजिटिव मिलेगा ऊपर का वैल्यू।
करेक्ट। और क्योंकि नीचे हमने तो बना नंबर दिया है, तो हमेशा पॉजिटिव मिलना, नेगेटिव तो मिलना नहीं मुझे। हाँ, क्योंकि हमने बना दिया उसको पॉजिटिव, राइट? नहीं हाँ नहीं, पॉजिटिव बना दिया ना अपन ने इसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेके, हाँ, एग्जैक्टली, सो वी विल ऑलवेज गेट द पॉजिटिव वैल्यू। करेक्ट। तो डेविएशन जो मुझे मिलेगा वो पॉजिटिव साइड ही मिलेगा। मान लो कि मेरा 7 मार्क्स का आया ये डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, तो ये वन डायरेक्शनल ही होगा ना 7 मार्क्स। करेक्ट। भाई 45 मीन्स है, जो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है 7 है, तो एवरेज डेविएशन 7 मार्क्स का हुआ, वो भी वन डायरेक्शनल हुआ। जबकि डेविएशन जो होता है, जैसे हम पेंडुलम देखें तो वो दोनों साइड डेविएट होता है कि नहीं होता है? यस। सेम लेंथ में। सो सेम चीज यहां होना चाहिए, नीचे भी डेविएट होना चाहिए 7 मार्क्स। इज इट क्लियर? यस। सो इट इज द यूनिडायरेक्शनल। तो अब ये 3 पॉइंट पे फिर उन्होंने बोला कि यार जब इन्होंने बोल ही दिया स्टैंडर्ड, तो हम नाम ही इसका एक नया बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं कलर चेंज कर लेता हूं तो थोड़ा सा डिफरेंट समझ में आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन नाम ही रख दिया उन्होंने, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये इसका नाम है स्टैंडर्ड डिविएशन जो अभी हमने किया? नहीं, जो अपन करेंगे, अब जो करेंगे ये सब जो डीमेरिट्स आई हैं इसको हम रेक्टिफाई करके जो नया बनाएंगे वो स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा। तो मैड अबॉलिश हो गया सर? मेड अबॉलिश हो गया, पर मेड का फिर भी उपयोग होता है कई जगह, अभी अच्छा, उपयोग करते हैं कई जगह। जब हम मीडियन लेते हैं तो हम मेड उपयोग करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी जब मीडियन यूज कर रहे हैं, या तो हम IQR यूज कर लें जो इंटरकोटाइल रेंज है उसको समझने के लिए, या फिर हम मेड यूज, हम लोग मेड यूज करते हैं, ज्यादातर मैं मेड यूज करता हूँ करते हैं मीडियन के साथ। हाँ मीडियन के साथ, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी देखने के लिए डेटा की। तो हम मेड के फिगर को देख करके हम पता कर लेते किस वेरिएबल की ज्यादा कंसिस्टेंसी है, किसकी कम है। वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको इधर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन नाम रखा उन्होंने नया। अब इसमें एक एक चीज कैसे हटाई। पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि हमेशा मीन से ही डेविएशन देखा जाएगा। फिक्स कर दी स्पेसिफिक सेंट्रल टेंडेंसी, फिक्स कर दी मीडियन। मीडियन की मीडियन सॉरी मीन, मैंने मीन ही लिखा है। अपन ने फिक्स कर दी एक स्पेसिफिक सेंट्रल टेंडेंसी मीन। ओके, मीन से ही देखा जाएगा, ना मीडियन से ना मॉड से। ओके, दूसरा चीज, एवरेजिकली ये रॉन्ग था कि नेगेटिव को पॉजिटिव बना रहे, तो हम क्या करेंगे, डेविएशन का स्क्वायर ले लेंगे। क्या करेंगे, जो भी डेविएशन है स्क्वायर करेंगे। -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 20 पॉजिटिव हो जाएगा ना ऑटोमेटिक। सो स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ठीक है। और उसके बाद हम उसका यूनिडायरेक्शनल है तो उसको बाई डायरेक्शनल करने के लिए हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, जब भी स्क्वायर रूट का सिंबल होता है तो क्या होता है, प्लस माइनस। ओके, स्क्वायर रूट के सिंबल में प्लस मतलब दोनों डायरेक्शन में हो गया, ऊपर भी जाएगा और माइनस भी होगा, मीन से प्लस भी होगा, मीन में माइनस भी होगा। वो बाय डायरेक्शनल हो गया कि नहीं? तो इसका जो बना फार्मूला वो ऐसा बना कि x माइनस एक्स बार जो हमने लिया उसका पहले स्क्वायर किया, जो भी हमारे पास डेविएशन आए उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद उसका समेशन किया, और समेशन करने के बाद हमने n से डिवाइड किया। तो ये जो मीन हुआ स्क्वायर ऑफ डेविएशन का मीन हुआ, ना कि डेविएशन का। भाई स्क्वायर ऑफ डेविएशन लिया है ना आपने, उसका मीन निकाला। तो ये तो हो गया स्क्वायर ऑफ डेविएशन का। हमें तो डेविएशन का मीन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप स्क्वायर रूट कर लो, वो डेविएशन का मीन कहलाएगा। वेरी गुड, व्हाट इट। और जैसे स्क्वायर रूट लगा तो ऑटोमेटिक प्लस माइनस आ गया, जो बाई डायरेक्शनल हो गया। यूनिडायरेक्शनल की जगह बाई डायरेक्शनल हो गया, कि मतलब जब मैं जो बात कर रहा था ना 45 + 7 तो -7 भी हो गया। व्हाट इट। यस सर ये लास्ट पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, स्क्वायर रूट के पहले तक तो समझ आ गया हमें। जब भी स्क्वायर रूट सिंबल लगाएंगे, ये स्क्वायर का डेविएशन था, सॉरी डेविएशन के स्क्वायर का मीन हो रहा था। तो हमने क्या किया कि भाई अपन इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो डेविएशन का मीन हो जाएगा वो। हाँ, जब जैसे ही स्क्वायर रूट लगाया तो एक चीज जो और थी, हमारा थर्ड ऑब्जेक्शन था, वो अपने आप रेक्टिफाई हो गया। दैट इज अ यूनिडायरेक्शन, हाँ डायरेक्शनल है ना, कि प्लस और माइनस दोनों आ गए। तो आपका जैसे मान लीजिए 45 मीन था,
और प्लस माइनस आप देखेंगे ना, हमेशा लिखा जाता है मीन प्लस माइनस एसडी लिखा जाता है जनरली, है ना। तो दोनों डायरेक्शनल में, मतलब 45 प्लस 7 और 45 माइनस 7, तो एवरेज जो रेंज होगी वो क्या होगी, 52 टू 52 और 38 टू 52 एवरेज रेंज। इस चीज की वो डेटा में जो बच्चों के मार्क्स की जो रेंज है वो एवरेज रेंज मानी जाएगी, और इसके बीच में कितना परसेंट डेटा होता है वो अपन बाद में इन्फेंशियल में देखेंगे, कितना परसेंट डेटा इसके बीच में लाई करता है। Got it? एक क्वेश्चन है 65% डेटा इधर लाई करेगा, 65% डेटा बिटवीन फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में लाई करता है। हाँ पूछें, क्या पूछ रहे थे आप? sorry, whoever, guys go ahead. कौन सर पूछ ये रहा है? 65% कहाँ से आया सर, ये समझ में नहीं है। ये मैं आपको इन्फेंशियल एनालिसिस जब अपन करेंगे अच्छा, अभी कैलकुलेट नहीं किया है यहाँ अभी पे। मैं नहीं बता, अच्छा, टाइम ओके, में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। क्या होता है कि ये x बार प्लस माइनस एस डी है, फिर x बार प्लस माइनस 2 एस डी पे कितना होगा, है ना, x बार प्लस माइनस 3 एस डी पे कितना होगा। मैंने कल आपको बताया था आउटलेयर के लिए 3 एस डी लेता है, तो 3 एस डी में क्या होता है 99.7 समथिंग % डेटा अपन को मिलता है, और बहुत कम डेटा 0.21 वो बाहर रह जाता है, वो आउटलायर्स कहलाती हैं। Got it? और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सिम्बॉल है वो है स्मॉल सिग्मा, ये स्मॉल सिग्मा कहलाता है। अच्छा ओके, एसडी, कई लोग एसडी ऐसा भी लिख देते हैं, और आप चाहें तो सिंबॉलिक कहीं लिखा तो आप समझ सकते हैं कि ये मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है। Got it? सर ये जो यूनिडायरेक्शनल जो सिचुएशन जो दोनों तरफ जानी चाहिए कायदे से, जिसके लिए हाँ। हम स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करते हैं, तो हाँ। सिंस हम कोई कैलकुलेशंस नहीं देख रहे हैं, तो आंसर कैन कम ईदर इन प्लस और माइनस, बोथ, राइट। हाँ। एंड अब हम जो ऊपर हमने जो सारे एब्सोल्यूट वैल्यूज करे थे, जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यूज करते जाएंगे कि माइनस के साथ वहां काम करेंगे, नहीं ना, वहां नहीं, पे इधर तो एब्सोल्यूट माइनस वैल्यूज, का साइन ही नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक प्लस हो गया ना ये, बिकॉज अपन नेक्स्ट जो एब्सोल्यूट कॉलम वैल्यूज बनेगा या बिकॉज नेक्स्ट मीन, हाँ हाँ नेक्स्ट करेक्ट, कॉलम एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस x बार का बना तो +6 हो गया। ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट वैल्यूज देंगे, हाँ, बट जब हम स्क्वायर रूट्स निकालेंगे वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आने के चांसेस है, हाँ, करेक्ट, ओके। या सर अब तो हम लोग कर ही नहीं रहे ना पॉजिटिव, वो तो हम लोग मैड के वक्त कर रहे थे ना, मैट के कन्वर्जन टाइम कर रहे हैं, यहाँ तो पॉजिटिव करा ही नहीं हमने, यहाँ नहीं कर, यहाँ तो जो भी था नेगेटिव उसको पॉजिटिव किया स्क्वायर करके, स्क्वायर करके करा। जैसे -2 था ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, अपने आप पॉजिटिव हो गया। क्लियर? और 2 भी है तो इसका भी स्क्वायर करा तो वो भी 4 पॉजिटिव है। इज इट क्लियर? राइट, यहाँ भी पॉजिटिव हो रहा है पर स्क्वायर करके हो रहा है, पर जब स्क्वायर रूट लगाया तो वो बाई डायरेक्शनल हो गया। ठीक है, तो ये था स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, देखिएगा क्या होता है, आपने कोई भी मीन लिया, तो मीन के साथ जरूरी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। आप खाली मीन कहीं भी नहीं लिख सकते अपने रिसर्च पेपर में, आपको मीन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना पड़ेगा। क्या होता है कि जो मीन है उस पर कितना रिलाई करें, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन में ये बताता है कि वो डेटा कितना कंसिस्टेंट है। यदि एसडी छोटा है मतलब डेविएशन कम है, एवरेज डेविएशन मीन से एवरेज डेविएशन कम है, डज दैट मेक सेंस? आ रहा समझ में? ओके, जब एवरेज डेविएशन कम है मतलब वो सब डेटा पॉइंट्स मीन के आसपास ही हैं, मतलब डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है। अच्छा, डिविएशन ज्यादा नहीं। यदि मान लो मेरे पास कोई डेटा है, वो डेटा ये है 20 20 20 20 20 और मैं मीन निकालूंगा तो क्या आएगा, 20 आएगा कि नहीं आएगा? और मैं मीन से डेविएशन जब देखूंगा तो 20 - 20 0, 20 - 20 0, 20 - 20 0, 20 - 20 0, 20 - 20 0, तो मेरा डेविएशन क्या आया? यदि मैं स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करूंगा तो 0 ही आएगा। यदि सभी डेटा पॉइंट वहीं पे है कि जगह केंद्रित हो गए, कोइंसाइड हो गए, तो डेविएशन 0 हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दैट क्लियर? मतलब सॉरी गो अहेड। हाँ बोले पूछे। तो मतलब आपका जो डेटा है इट इज फुल्ली होमोजेनियस,
होमोजीनियस। correct? Okay. तो यहाँ आप देखेंगे कि एसडी जितना कम होगा, डेटा पॉइंट्स मीन के आसपास ही होंगे, मीन से ज्यादा डेविएट नहीं है डेटा, है ना, वेरिएंस नहीं है डेटा में, या वेरिएबिलिटी नहीं है, या हम बोल सकते हैं डेटा कंसिस्टेंट है, डेटा स्टेबल है। करेक्ट। इज इट क्लियर? यस। यस सर। यदि एसडी ज्यादा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक सैलरी 50,000, एक की सैलरी 10,000, दो की सैलरी अपनी थी 8,000, तो मैं 16,000 एक साथ लिख देता हूं। ये कितना हुआ? 50, 60, 76 चार और 5 लोगों में, और उसकी मान लेते हैं 76 और 4,000 मान लेते हैं प्यून की। ओके, तो कितने हो गए? 80,000 हो गए। और इसको डिवाइड किया मैंने 5 से। ओके, 5 लोग हैं, ये 2 हैं, है ना, यहाँ पे 2 हैं 8-8 हजार वाले, ये 5 हैं। समझे आप लोग? यस सर। तो ये कितना हुआ? 16,000 है ना। अब 16,000 है, यदि मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं तो वो हाई साइड आएगा, है ना, ज्यादा आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यदि स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से बहुत ज्यादा है, मतलब मीन 16,000 है और स्टैंडर्ड डेविएशन एक बड़ी संख्या आ रही, मीन से तो कभी ज्यादा होता नहीं है, मीन से हमेशा कम होता है एसडी, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, मीन से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। तो 50,000 माइनस 16,000 कितना होगा, जो भी अपन निकालेंगे, जो भी आएगा तो वो हाई साइड आएगा। तो हम इस मीन पे रिलाई नहीं करेंगे ज्यादा 16,000 पे। भाई यदि वो 16,000 मीन सैलरी बोल रहा है तो हम उससे पूछेंगे एसडी कितना है सब। Okay. और इसका यदि हम एसडी कैलकुलेट करें, मैं आपको जस्ट मूवमेंट में दूसरे उससे कर देता हूँ कैलकुलेट। मीन से ज्यादा क्यों नहीं आ सकती? मैं डेविएशन है ना, कम ही आएगा हमेशा। हमेशा। हाँ, मैं एक सेकंड एक टूल से मैं कंप्लीट कर देता हूँ जल्दी, एसडी निकाल देता हूँ। because The difference, so difference would always be what, less? less. मैं एक एसडी निकाल देता हूँ इसका, अपने टूल से जल्दी निकल जाएगा, अपन कैलकुलेट करेंगे, टाइम लगेगा। हाँ करेक्ट, लेस होगा। 50,000 है ना पहला फिगर अपना। Yes, sir. 50,000, सॉरी इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे, 50,000, then 10,000, then 8,000 दो है ना, तो Yes. 2 बार लिख देते हैं क्योंकि वो काउंट करेगा उसको, और फिर 4,000। ओके, ये हमारे पास, why it is not giving me 50,000, 10,000, 8,000, 8,000, 4,000, just a moment, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया इधर। सर स्पेसेस का कोई चक्कर तो नहीं है? नहीं, स्पेसेस का नहीं है, मैं या तो एक काम करता हूँ, Can we take one of these tools to class? yeah, this is why it is not working. I'm just saying that, see, now it is okay, and I see the SD of this. The mean I will show you first so you could recognize that it is doing the right thing. Mean of X, so I'm getting 16,000 is the mean. We have got the mean 16,000 there. Right. Now SD I will calculate for this. So it is the 19 point, 19,000। why 16 it से is ऊपर है। वैल्यूज किधर दिख रहे हैं? अच्छा नीचे नीचे है। है, नीचे आ रहा है ना वैल्यू, ये इतना आना नहीं चाहिए, 16 से ऊपर जा रहा है। 16 से ऊपर जा रहा है। 50,000, 10,000, 8,000, 8,000, 4,000 SD X O, ST x minus x होगा ना? वो फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं, फार्मूले में जरूरत नहीं पड़ता है हमें। X minus mean. This is
in 50, 10, 8, 8, 4000. Okay. And SD of X. So 19,131. ये तो बहुत ज्यादा जा रहा है. ज्यादा है ना. SD ज्यादा जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा डेविएटेड डेटा, मीन से भी ज्यादा डेविएशन बता रहा है ना, क्योंकि एक्चुअली मीन से वैल्यू ज्यादा है. मतलब मीन से कम वैल्यू बहुत ही कम, मीन से कम वैल्यू हमारे पास ज्यादा थी. 4 वैल्यू जो है वो मीन से भी कम है. 10,000 ही लिखा है ना मैंने. 50,000, 10,000, 8,000, 4,000 करेक्ट है. सो एक्चुअली ये कभी भी SD जो है वो मीन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यदि मीन से ज्यादा SD जा रहा है तो वो डेटा रिलायबल ही नहीं है हमारे लिए. वो मीन पे हम रिलाई नहीं कर सकते कभी भी. But then I have a question. ये तो बहुत रियलिस्टिक नंबर्स हो सकते हैं. 50,000 भी हो सकती है सैलरी और 4,000 भी हो सकती है. हाँ. I mean, you can't control the numbers. तो अगर हाँ. ऐसे में तो फिर जब 19,000 आ रहा है तो वो वजह से ही आ रहा होगा ना सर. हाँ मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मीन जो है 16,000 सैलरी बता रहा है, एवरेज सैलरी. तो इसका मतलब ये हुआ कि SD बहुत ज्यादा है, मतलब डेटा बहुत ज्यादा डेविएट हो रहा है मीन से. आप देखिए ना 16,000 और 50,000 पे जा रहा है. मीन हमारा 16,000 है, डेटा हमारा 50,000 पे, बहुत हाईली डेविएटेड है. सही है. इसलिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से भी ज्यादा चला गया. तो ये डेटा रिलाई करने लायक ही नहीं है. मतलब मीन पे हम नहीं जाएंगे इसमें. हम इसमें क्या देखेंगे, या तो मोड ले लें या मीडियन. एज अ सेंटर टेंडेंसी हमको कहीं काम करना है इसके साथ, तो हम मीडियन या मोड पे काम करेंगे. तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन पर हम हमेशा मीन पे ही करते हैं, तो मतलब Correct. मैड हाँ, फिर मैड आ जाएंगे. हाँ तो हम But लोग then क्या, सर उस हाँ सॉरी. हाँ अब Sorry, यहाँ हमें समझ में आ गया कि ये मीन तो रिलायबल नहीं है इसका. करेक्ट. तो फिर हम आ जाएंगे मीडियन पे, और मीडियन के साथ फिर हम मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की बात करेंगे. तो हम जैसे यदि इसका मीडियन देखें, So that means in a way sir it is about experimenting हो जाएगा. अगर मीन भी ऊपर चले गया मान लो किसी वजह से, I mean sorry मीडियन, तो फिर अपन मोड पे आ जाएंगे. हाँ ये देखिए अपने आप कम आ गया. 2900. हाँ और मीडियन आया 8,000 अपना. which is fine. Median is 8,000 only. तो जब मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ये जो है ये मीडियन के थ्रू है इसमें. हाँ, इस टूल के अंदर MAD जो निकाला जाता है मीडियन के थ्रू निकालते हैं इस वाले पर्टिकुलर टूल में. तो ये मीडियन के थ्रू है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें. इज इट क्लियर? सो दिस इज बेटर रिप्रेजेंटेशन कि हाँ भैया मीडियन पे जाएं. 8,000 मीडियन सैलरी है और डेविएशन है 2,965 का. मतलब आपकी जो सैलरी होगी वो 12-15 हजार रुपए, वो लोग 10-12 हजार रुपए देंगे जनरली, मैक्सिमम देंगे. तो नहीं सर एक सवाल और है. अब जैसे हाँ. ये 8,000 निकला अपना मीडियन. हाँ. और अपना वो डिविएशन आया करीब करीब लगभग 3,000 का. 3,000 रुपए है ना. तो ये ज्यादा, इसको डिविएशन ज्यादा नहीं बोलेंगे 8,000 के कंपैरिजन में, बिकॉज इट्स अराउंड 3,000. इज दैट हाउ आई अंडरस्टैंड? ये कम है. 16 में 19 भी तो ज्यादा नहीं था सर मेरे हिसाब से. तो मैडम 16,000 में 19,000 था, 1,900 नहीं था. 19,000 सॉरी 19,000 था. तो ऊपर तो लेना है ही नहीं अपने को, कम ही लेना है. कम ही लेना, क्योंकि कम लेना है इसलिए अपन मीडियन पे आ गए. हाँ करेक्ट. गॉट इट. सो ये रिलायबल ही नहीं है. मतलब मीन तो उस डेटा के लिए कोई काम का ही नहीं है. तो मीडियन मीन उसको रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं डेटा को सही से. सर एक बार मोड भी ट्राई कर ले. मोड इसमें निकलता नहीं है मैडम. मोड इसका 8,000 ही आएगा, क्योंकि 2 बार 8,000 आया ना मैक्सिमम टाइम्स. 8,000 आएगा. ओके. मोड भी सेम ही आएगा, क्योंकि 2 बार मोड 8,000 है ना. तो जो हायर साइड आएंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो 8,000 2 टाइम्स, बाकी सब 1 टाइम्स है. तो मोड तो 8,000 ही होगा इसका. क्लियर? गॉट इट. तो ये इस प्रकार से हम लोग इसको समझते हैं कि भाई मीन पे कितना रिलाई करना है या नहीं करना है. तो वो चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि भाई किस पे मीन को लेके चलना, कहाँ मीडियन को लेके चलना है. अब हम डेविएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन के कोएफिशिएंट देखते हैं. एक होता है वेरिएंस. पहले वेरिएंस को समझ लें. वेरिएंस इज नथिंग, इट इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. यदि मैं स्क्वायर रूट नहीं लगाऊं तो वो वेरिएंस है. स्क्वायर रूट हटा दूं, स्क्वायर हटा दूं तो स्क्वायर रूट रूट की स्क्वायर रूट हटाऊंगा ना, तभी तो. देखिए सिग्मा क्या है? सिग्मा स्क्वायर है. नहीं, यहाँ सिग्मा का मतलब क्या हुआ? सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि रूट है.
है ना? इज इट क्लियर? ये आपका सिग्मा है। यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा क्या होगा? इसका भी स्क्वायर होगा, Correct. root होल का, Square root तो रूट हट जाएगा। Hmm. गॉट इट? Yes. तो यहां वो रूट हट गया। ये होता है वेरिएंस। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की, कोफिशिएंट ऑफ एसडी और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ एसडी सिग्मा, मतलब जो एसडी है उसको हम मीन से डिवाइड करेंगे। जिस आपने सेंट्रल टेंडेंसी से वो निकाला है उससे डिवाइड करते हैं हमेशा। तो आपने वो डेविएशन किससे निकाला है? मीन से निकाला है स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो उससे डिवाइड कर रहे हैं। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो होता है सिग्मा ओवर एक्स बार इंटू 100। बस ये डिफरेंस है, ये सिग्मा स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे देखिएगा सेम है, ये रेशियो सेम है, बट खाली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहलाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एसडी कहलाएगा। तो ये परसेंटेज होता है क्या? हाँ, ये परसेंटेज कई लोग सिंबल लगाते हैं, कई लोग नहीं लगाते हैं, तो उससे कोई अपन को बॉदर करने की जरूरत नहीं है। कई लोग लगाते हैं परसेंटेज सिंबल भी, कई लोग नहीं भी लगाते हैं। तो कोफिशिएंट यदि आपसे पूछा जाए, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, और होगा भी, अपन क्वेश्चन पेपर में भी देखेंगे, आएगा शायद एक आध क्वेश्चन। वो 2 डेटा सेट दे देंगे आपको, या उसके वो दे देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ भी दे देंगे आपको। पूछेंगे कि कौन सा डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा यदि मेजर करना है तो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे हमेशा। अच्छा। जबकि हमें दूसरे चीजों से भी रिफ्लेक्शन मिलता है, कंसिस्टेंसी डेटा का मिलता है ना, एसडी से भी मिलता है, हमें दूसरी चीजों से भी मिलता है। पर हम लोग जो स्पेसिफिकली यदि वो पूछेंगे, 2 डेटा दे दिया उन्होंने ए और बी, विच वन इज मोर कंसिस्टेंट, तो आप दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। इज इट क्लियर? जैसे जिसका एसडी कम होगा वही डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट होगा ना। ये तो हम एसडी से भी चेक कर सकते हैं, पर यदि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की वैल्यू निकाल के आंसर में लिखनी है। वैसे सर अपना जिसका भी एसडी कम होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी कम होगा। हाँ, कम होगा ना। पर क्या होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि आपसे वो पूछते हैं कि भाई डेटा की, किस डेटा की कंसिस्टेंसी कम है या ज्यादा है, आप मेजर करके बताएं, तो कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए हमेशा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ही लिया जाता है। इज इट क्लियर? Okay. So whichever value is lesser, coefficient is less, that is more consistent. मोस्ट कंसिस्टेंट और मोर स्टेबल ऑल्सो, है ना। स्टेबिलिटी भी पूछते हैं, विच डेटा इज मोर स्टेबल, so that is the same thing. Clear? And same for standard deviation. If the lower the number, the more what do you हाँ, say? same for Consistent that, it is, same for that. right? That Okay. is same, no problem. That is same. Yes. But whenever they ask in the examination, then I say we have to consider this thing, है ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली तो हम लोग एसडी से ही समझ जाते हैं सब, पर एग्जामिनेशन में तो हमें कुछ रिजल्ट निकाल के देना पड़ता है ना उनको, वैल्यू। वो वैल्यू किस वैल्यू से आप डिटरमाइन करेंगे, तो वो वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। Okay. ओके, जनरली तो हम लोग तो एसडी से ही करते हैं, हम लोग जाते नहीं वहां तक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन प्रैक्टिकल वे में। और एग्जामिनेशन में ये होता है, एग्जामिनेशन में यदि आपने एसडी के हिसाब से कंपेयर करके आंसर लिख दिया, एसडी की वैल्यू और वो आंसर लिख दिया, यहाँ दिस इसका एसडी कम है और इसका ज्यादा है और ये ज्यादा कंसिस्टेंसी है, तो वो आपका मार्क्स काट लेगा। ठीक है। समझ सर गए? जब सर एक सेकेंड सर, जब कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा देखना पड़ता है, जब आप 2 डेटा डेटास को आप कंपेयर करके आप बताते हो कौन सा वाला इज अ मोर रिलायबल दिस थिंग डेविएशन, वेरिएंस, ये तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, या वेरिएंस का भी यूज होता है फिर? हाँ, वेरिएंस भी यूज करते हैं ना, वेरिएंस का भी वही मतलब निकलता है, जो एसडी का निकल रहा है वही वेरिएंस का निकल रहा है, और वही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का भी निकल रहा है। वेरिएंस का मतलब ये होता है कि वेरिएबिलिटी, डेटा कितना वेरिएंस कर रहा है, कितना वेरी कर रहा है डेटा, वो तो अपने को एसडी से नहीं मालूम पड़ रहा है, एसडी से ही पता चल रहा है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से ही आपको आंसर लिखना है।
अच्छा, एग्जाम में यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आया समझ में आपको ये चीज? मतलब मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली तो हम तो एसडी से समझ जाते हैं उस चीज को। सो ट्रूथ इज पहले एसडी निकाल करके और उसको मीन से डिवाइड करें। भाई मीन तो हम निकालेंगे एसडी के लिए, तब तो हम डेविएशन देखेंगे। सो एसडी निकल गया मान लीजिए। हाँ एसडी निकलेगा, उस एसडी को हम मीन से डिवाइड करेंगे। हाँ अच्छा, और इंटू 100 करेंगे। वो कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस। हाँ ठीक है, क्लियर? हाँ नूपुर जी, नूपुर जी थोड़े विचार में। You are not audible. You are not audible. I just came back home, so I have to repeat the class. You know, I missed out a couple of sections because I was driving, so that's why. Okay. So the recording you will get. Don't worry. Yes, sir. The recording you will get the link, and whatever the doubt you could ask tomorrow. Okay, sir. I'll do that. Session. तो Don't हम worry. वेरिएंस को भूल जाए, हैं? हम वेरिएंस को भूल जाए, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के साथ काम करना है। हाँ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, क्या सबका अपना अपना बहुत माइनर हेयरलाइन डिफरेंसेस हैं, पर अपन को इतने डीप में जाना नहीं है क्योंकि आपका क्रैश कोर्स है और उतना डीप के क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। आप लोगों को तो जनरली वेरिएंस या कंसिस्टेंसी पूछेंगे, ये चीज पूछेंगे बस। तो वो तो आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से ही आपको निकालना, वो मैंने बता दिया पॉइंट आपको, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं एसडी निकाल के लिख देते हैं और वो मार्क्स कट जाते हैं उनके। अच्छा सर, क्वेश्चन कैसे, मतलब क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे वो? मैं देखता हूं इसमें, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, मेरे पास होंगे क्वेश्चंस। Just a moment, I just see that question. I will just searching the question. इसमें पहले वाले में तो नहीं है, दूसरे में देखता हूँ। दूसरे में भी नहीं है इसमें। टेस्ट पे इन्फ्रेंशियल पे ज्यादा क्वेश्चंस हैं आपको मोस्टली। डिस्क्रिप्टिव पे नहीं है क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव पे क्वेश्चन नहीं है? नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी है क्या? ओके। हाँ क्योंकि आपको जितने भी हैं ये सब इन्फ्रेंशियल पे ही है। तो ये सारा जो अभी हमने किया सर, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह, वो सब डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है ना? हाँ डिस्क्रिप्टिव का पार्ट किया अपन ने, पर इसके बगैर अपन आगे का समझ भी नहीं सकते ना। बिल्कुल। अब जैसे आपका जो चालू होगा इन्फ्रेंशियल चालू होगा, बाइवेरिएट एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस पे बहुत से क्वेश्चन है। हाँ। है ना? तो हर दूसरे तीसरे पेपर में कोरिलेशन आए, जैसे कि आप व्हाट इज द टेट्राकोरिक कोरिलेशन, कंप्यूट कैंडल टाउ फॉर द फॉलोइंग डेटा दिया है, टाउ कोरिलेशन हमें मालूम करना है। तो 3 + 7 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का थ्योरी है, जो पहला पार्ट दिया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द टेट्राकोरिक
कोरिलेशन, और सेकंड पार्ट जो कंप्यूट करना है वो 7 नंबर का है। अच्छा ऐसे 10 नंबर का क्वेश्चन हुआ। तो ये अपन जो कोरिलेशन वगैरह कल से अपना प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा ठीक है। कि भाई कोरिलेशन कैसे मेजर करते हैं, क्या फार्मूला है ना। तो ये कोरिलेशन हर पेपर में आया है, हर पेपर में आया है, कोरिलेशन पे क्वेश्चन आया ही आया है ना। तो अपन वही सब तरह के कोरिलेशन उसको कैसे कंप्यूट करना है, और सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चंस आपको ट्रिकी नहीं आते हैं, सबसे मेन चीज ये है, इग्नो में कभी भी क्वेश्चन ट्रिकी नहीं देते ये लोग, ठीक है। गुड न्यूज। हाँ, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल डायरेक्ट स्ट्रेट पूछ लेते हैं कि भाई ये चीज निकालो, घुमा फिरा के नहीं पूछते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आपको वो बेनिफिट रहेगा, डेटा में कहीं भी ट्रिकीनेस नहीं है कि आपको पहले ये चीज सॉर्ट आउट करोगे फिर उसके बाद ये करोगे, ऐसा कुछ नहीं, सीधा सीधा डेटा दिया और जो भी पूछा वो निकालना है हमें कैलकुलेट करके। तो ये मैंने एक विशेषता इग्नो में है। They make it simple for us, is it? हाँ, क्योंकि क्या होता है कि अब डिस्टेंस एजुकेशन है तो दिक्कत तो रहती है लोगों के साथ। तो वही कोरिलेशन पे क्वेश्चन है, तो कल अपना ये कोरिलेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे अपन सब। तो कोरिलेशन वाला एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं थ्योरी भी एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा, और आपको बता भी दूंगा किस पार्ट में वो थ्योरी है, तो वो आप पढ़ भी लीजिएगा। फिर जो भी डाउट्स होंगे वो अपन नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर लेंगे, और कल अपन प्रैक्टिकल हर तरह के जो कोरिलेशन के क्वेश्चंस हैं वो अपन कल सॉल्व कर लेंगे एक एक। ओके, यस सर। और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है कोरिलेशन के, वो आपको सेल्फ करना है। टेस्ट कर रहे भाई हमारी अपनी एबिलिटी। हाँ, नहीं इसलिए कि आपको आंसर तो दिख नहीं रहेगा क्वेश्चन पेपर में, बुक में तो आंसर दिख जाएंगे, आप मैच कर लोगे हाँ आंसर सही है नहीं है। तो जो आपके आंसर आएंगे, हो सकता है लोगों के वेरी करें आंसर, फिर मैं आपको बताऊंगा करेक्ट आंसर ये, फिर मैं उसको करेक्टली जो भी एक यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, देखिए करेक्ट इस तरह से सॉल्व हुआ। इज इट क्लियर? तो वो आपको समझ में आ जाएगा आपने कहाँ मिस्टेक करी है। आप करके बताएंगे ना सर बाद में? हाँ, मैं करके बताऊंगा ना वो यहाँ पे। ठीक है, वो मैं बाद में करके बताऊंगा, पर पहले मैं चाहूंगा कि पहले मैं दूसरे एग्जाम्पल पे वही चीज मैं करके बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नहीं लूंगा, दूसरा क्वेश्चन लूंगा और उसको मैं करके बता दूंगा सेम चीज। फिर आप पहले हम सीखेंगे भाई, फिर उसके बाद कुछ कर लेंगे ना। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। कैलकुलेटर ले आए कल हम, मतलब। हाँ, कैलकुलेटर तो आप परचेस कर लो मैडम। क्या वो सिंपल करना, ऑर्डिनरी कैलकुलेटर जो दुकानों पे रहते हैं ना, सिंपल जी जी जी, वो करना, बड़े वाले जो अकाउंट्स वाले रखते हैं। हाँ, सिटीजन के, वो स्क्वायर रूट वगैरह निकालने लायक हो जाए हम। हाँ, मतलब उतना ही रखना, क्यों साइंटिफिक मत लेना, साइंटिफिक अलाउ नहीं करेंगे। अलाउड नहीं है सर क्लास में। हाँ, एग्जाम में अलाउड नहीं है। तो वो कैलकुलेटर आप लोग ले लें। इट्स इन द हॉल टिकट। हाँ, तो कल सबको कैलकुलेटर लेके बैठना है अपने पास, क्या? जी सर। और कॉपी नोटबुक भी आप लोग लेके बैठिएगा, कि जिससे जो अपन यहाँ कर रहे हैं वो फटाफट आप लोग नोट डाउन भी करते जाएं, ठीक है? यस सर। तो आज का ठीक रहा, आपको समझ में आई चीजें? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, है ना? So good. मतलब ये फिगर्स देखे हुए थे, इस तरीके के कलाकारी देखी हुई थी, स्टैंडर्ड डिविएशन टाइप के भूल गए थे। हाँ, वो क्या रहता है, यूज्ड टू नहीं रहते ना। अब हाँ। मेरा तो क्या है कि 26 साल हो गए, तो मेरे को तो कई बार सपने भी डेटा के ही आते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम काम कर लेते हैं हम लोग, तो फिर वो नींद में भी डेटा ही दिखता है हमें, क्या? अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था रियाद का, और वहाँ एक जगह मैं स्टक हो गया। मैं दोपहर को लंच के बाद थोड़ा सा 15-20 मिनट, आधा घंटा एक झपकी लेता हूँ, तो मुझे उसका सॉल्यूशन वहाँ 15 मिनट में मिल गया उस झपकी में। इतनी यार इसको ऐसा कर दूंगा क्या? तो कई बार कुछ सॉल्यूशंस नींद में मिल जाते हैं। ये किस में है, किसी में है ना, हमारा रिसर्च में है या किस में है, जो बोलते हैं इंक्यूबेशन इफेक्ट होता है, दैट यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम समथिंग एंड देन यू गेट अ सॉल्यूशन टू इट। हाँ, In your cognition. Cognitive psychology. कॉग्निटिव में है, Cognitive में है। तो वो क्या Creative हुआ कि thinking का पार्ट है, हाँ, insightful thinking का पार्ट है। तो वो कई बार हम लोग स्टक होते हैं ना, तो मुझे सॉल्यूशन ऐसे ही मिलते हैं, नींद में ही उसका सॉल्यूशन मिल जाता है।
और वो मुझे याद भी रहता है जब मैं जगता हूँ, अरे यार ये सॉल्यूशन मिला मुझे सपने में, तो वो मैं अप्लाई कर देता हूँ, हो जाती चीजें कई बार। तो होता है कई बार डेटा में स्टक हो जाते हैं कहीं। स्टैट्स का सपने में हमें भी आंसर आ जाए तो we can manage. We should sleep in the exam, huh? Then we'll get the answer. 3 घंटे क्या करना है? 5 minute nap. हाँ और क्या, नहीं एक सॉल्यूशन मिल जाता है कि उसके ऐसा कर लेंगे तो ये चीज हो जाएगी। ओके, तो आज के लिए सफिशिएंट है। हाँ गुड सर, नाइट एवरीवन, थैंक यू Right, सर। sir. कल Thank मिलते हैं you, फिर 5 sir. बजे। Thank you so ओके, much. थैंक यू।